So in this video lecture, we are discussing about two of the most important concepts of microeconomics, that is income and substitution effects. So now what happens in income and substitution effect is whenever there is a change in price, right? So we know that there are two goods, X and Y, and X is sold at PX, Y is purchased at PY, and we know the income of the consumer is M. Now in this case, if PX falls, we know that there is going to be a change in the consumption of X and Y. So suppose initially before the price change, suppose prices in the economy are these. So the prices before the price change are PX, PM, and income of the consumer is M, right? Now, before that, when this is the situation, consumer consumes X star and Y star. Now, when price falls, right, there is going to be a new PX dash. So new price is PX dash. PY remains the same, income remains the same. Now, with this new combination, a new X star and Y star will be consumed, right? So now the consumer will do not consume the old values of X and Y. Now, to study this, that how much X changes, how much Y changes because of change in X, price of X, is studied by two concepts, that is income effect and substitution effect. So now let's assume two goods. X is suppose Pepsi and Y is suppose pizza. Now in this case, if price of Pepsi falls, so new price of Pepsi is PX dash and PY remains the same. Also, income remains the same, right? This is the situation in an economy. Now, there are two effects that happen when this happens. One, for Pepsi. Now, since Pepsi is less expensive, you will want to consume more of Pepsi, right? And when it's come to pizza, that is good Y, you will want to consume less of pizza. Why? Because there is a relative change in prices. Earlier, PX by PY were the relative prices. Now, PX by PY has fallen. So, if you compare the relative prices, so that means as compared to pizza, Pepsi is relatively more cheaper. So when you have to trade off between both the things, you will want to consume more. But now, suppose the consumer consumes the same amount of Pepsi and pizza as before. For example, PX is equal to PY is equal to 2 initially, and money income was 100, right? Suppose this was the case. In this case, if 10 pizza and money income को, so change the money income in this case. Money income is suppose given by 40. So suppose 10 units of Pepsi and 10 units of pizza were consumed before. Now, when price of Pepsi falls, now suppose the new price of Pepsi is 1. Now, if you calculate, the consumer consumes, अगर वो 10 units of Pepsi ही consume करे और 10 units of pizza ही consume करे, तो अब कितना expenditure होगा consumer का? 30. So you see, if the consumer keeps on consuming the same bundle,
this bundle, then he saves some income. This income saved, right? This income saved is nothing but this will help us find the income effect, right? Why? Because see, in a way his रियल इनकम हैज गॉन अप। ठीक है, ये जो 40 यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं नॉमिनल इनकम। अब जब प्राइस कम हुआ और इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा क्वांटिटी, एक तरह से ये जो आपके 10 रुपए बच गए, 10 रुपए की जो सेविंग हो गई, ये क्या है, जो आपकी रियल इनकम है वो बढ़ गई है। अच्छा, रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रियल इनकम मेजर करने के लिए इनकम अपॉन प्राइजेस। अब पीएक्स अगर कम हो गया है तो यानी रियल इनकम, ये पूरा वैल्यू बढ़ गई। सो इन अ वे रियल इनकम हैज गॉन अप। नॉमिनल इनकम इज सेम। नॉमिनल मीन्स ये जो जितना अर्न कर रहा था ये सेम है, बट रियल इनकम जो है एक तरह से वो बढ़ गई है। मतलब कि अगर हम सेम बंडल कंज्यूम करते जो पहले कर रहे थे तो हमारे पास 10 रुपए की जो सेविंग हुई है, एक तरह से हमारी रियल इनकम बढ़ गई है। अब एक चीज तो हमने बोली कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये इसका प्राइस कम है तो वो ये ज्यादा कंज्यूम करेगा और ये कम कंज्यूम करेगा, है ना? तो अब देखो, अगर एक टर्म जो है आपकी बढ़ रही है तो यानी कि अगर आपकी एक इक्वेशन है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम, तो एक तरह से ये बढ़ रही है और ये कम हो रही है, तो इक्वेशन बैलेंस हो सकती है, राइट? बट यहां पर हम ये बोलते हैं कि एक तरह से ये जो 10 रुपए की सेविंग है अगर वो सेम बंडल कंज्यूम करे तो ये जो सेविंग हुई है इस और जो रियल इनकम अप गई है इसको हम इनकम इफेक्ट बोलते हैं। इनकम इफेक्ट का मतलब कि एक तरह से अब कंज्यूमर अपने आप को रिचर फील कर रहा है। तो जब कंज्यूमर रिचर फील कर रहा है तो अब कोई भी रिच पर्सन क्या करेगा, किसी की भी इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है, दोनों गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाता है। ये हमने इनकम के केस में भी पढ़ा था कि जब इनकम का इक्विलिब्रियम होता है तो दोनों एक्स और वाई की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां पर हम टेबल को फिल करते हैं। इनकम इफेक्ट के हिसाब से एक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब यहां पर ये जो टोटल इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। ये प्राइस इफेक्ट क्या कहता है कि टोटल प्राइस और पेप्सी कम होने की वजह से एक्स और वाई की वैल्यूज में क्या फर्क आएगा, और इसके क्या दो इफेक्ट्स हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से एक्स की कंजम्पशन बढ़ेगी और इनकम इफेक्ट की वजह से क्योंकि वो रिचर है, जो उसकी रियल इनकम बढ़ गई है, तो उस वजह से प्राइस इफेक्ट के हिसाब से एक्स की वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर हम पिज्जा की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से उसकी वाई की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन इनकम इफेक्ट से वाई की वैल्यू बढ़ रही है। तो वाई की वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और वाई की वैल्यू सेम भी रह सकती है। तो ये किस चीज पर निर्भर करेगा कि वाई की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ वाई, ठीक है, अगर बड़ा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ इनकम इफेक्ट ऑफ वाई से, तो वाई की कंजम्पशन कम हो जाएगी। अगर इनकम इफेक्ट ऑफ वाई इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ वाई तो वाई की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। इसको इंट्यूटिवली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ही एक गुड का प्राइस कम होता है, अब कंज्यूमर बेसिकली आप क्या कर रहे थे, आप बहुत सारे गुड्स सोसाइटी में खरीदते हैं, राइट? नाउ सपोज पिज्जा का प्राइस इकोनॉमी में कम हो जाता है, तो एकदम से जितना प्राइस कम हुआ, आपने जितना सेव करा, तो फॉर एग्जांपल अगर पिज्जा आप पहले
₹100 का खरीद रहे थे, अब आप पिज्जा ₹80 का खरीद रहे हैं, तो आपने ₹20 सेव करे। अब ये ₹20 जरूरी तो नहीं है कि आप पिज्जा ही में ही लगाओ, ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? इसलिए भी जरूरी नहीं है क्योंकि आपकी पिज्जा की जो डिमांड है, आपकी जो पिज्जा की प्रेफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब ये जो बचे हुए ₹20 है, हो सकता है आप कोई दूसरे गुड पे स्पेंड करो। ये फर्स्ट ऑप्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये जो ₹20 बचे हुए हैं, राइट, इसको आप पिज्जा पे ही स्पेंड करो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बचे हुए ₹20 हैं, इसमें से कुछ पार्ट आप पिज्जा पे स्पेंड करो और कुछ पार्ट आप अदर गुड में स्पेंड करो। सो ये सब सिचुएशंस को एनालाइज करने वाला जो कह रहा है कि आप दूसरे गुड पे बहुत ज्यादा स्पेंड करो अगर आपके पैसे बच गए, तो इसमें क्या हो रहा है कि इनकम इफेक्ट एक तरह से ज्यादा है। तो कंज्यूमर जब रिचर फील कर रहा है तो वो दूसरे गुड पे ज्यादा स्पेंड करना चाहेगा। जब वो पिज्जा पे ही ज्यादा स्पेंड कर रहा है और अदर गुड की कंजम्पशन वो कम कर रहा है, राइट, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि पिज्जा अब जो है वो ज्यादा महंगा हो गया है, मतलब सस्ता हो गया है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि अब जो पिज्जा का प्राइस जो कम हो गया ₹80, तो ये जो ₹20 मेरे बच रहे हैं, इससे और पिज्जा का स्लाइस खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अब इस ₹20 से पहले तो और भी कम पिज्जा आ रहे थे, अब और आ रहे हैं। तो पिज्जा सस्ते होने की वजह से आप ज्यादा, तो ये आपका है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब ज्यादा हावी है। और जब आप इक्वल अमाउंट में भी हो सकता है सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स ट्राई टू स्टडी अ फॉल इन प्राइस ऑफ फिश। तो इसमें जो एक्स गुड है वो हमने फिश लिया है। सो देयर आर टू गुड्स, मैंगोस एंड फिश, राइट? देयर आर टू गुड्स एंड वी आर assuming that price of fish falls. This is something we are assuming. Now, if there is a fall in price of fish, ठीक है, कौन से दो इफेक्ट्स होंगे? एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। अब हमें पता है कि फिश का प्राइस जब कम होगा तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से फिश की कंजम्पशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अब फिश सस्ती है। मैंगोस जो दूसरा गुड है उसकी कंजम्पशन कम होगी, क्योंकि रिलेटिव प्राइसेस, यानी कि जो दूसरा गुड है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अब अगर हम इनकम इफेक्ट की बात करते हैं, अब क्या हो रहा है? अगर कंज्यूमर पहले जितना फिश और मैंगोस कंज्यूम करता है तो उसकी जो रियल इनकम है वो बढ़ गई है, राइट? तो परचेजिंग पावर बढ़ना यानी रियल इनकम बढ़ना। तो अब जब रियल इनकम बढ़ गई है तो इससे वो फिश की कंजम्पशन भी बढ़ाएगा और मैंगो की कंजम्पशन भी बढ़ाएगा। तो अब दोनों इफेक्ट्स के हिसाब से फिश की कंजम्पशन तो बढ़ेगी, लेकिन मैंगो की कंजम्पशन बढ़ेगी या घटेगी या सेम रहेगी, ये हमें नहीं पता। अब हम इस प्राइस के चेंज को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये टेबल देख लेते हैं कि अब इस वाले केस में मैंगो की कंजम्पशन कब कम होगी, कब बढ़ेगी, ये देखते हैं, ठीक है। अब हमें पता है फिश की तो कंजम्पशन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से भी बढ़ेगी और इनकम इफेक्ट से भी बढ़ेगी। मैंगो की कंजम्पशन की बात करें हम, राइट, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से मैंगो की कंजम्पशन कम होगी और इनकम इफेक्ट से मैंगो की कंजम्पशन बढ़ेगी, राइट। तो हम इसकी मैंगो की कंजम्पशन के 3 केसेस बनाते हैं। अगर मैंगो का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज्यादा होगा, देखो प्राइस इफेक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का सबमिशन। इसके हिसाब से ये कम हो रहा है, इसके हिसाब से ये बढ़ रहा है। एक चीज नेगेटिव है और दूसरी चीज पॉजिटिव। तो नेचुरली सी बात है, ये जो चीज नेगेटिव है, राइट, और ये जो चीज पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव ज्यादा होगा पॉजिटिव से, तो प्राइस इफेक्ट क्या होगा? तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि मैंगो की कंजम्पशन कम हो जाएगी। ये पहला केस। सेकंड, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैंगो का कम है इनकम इफेक्ट से, तो मैंगो की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। थर्ड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैंगो का
इनकम इफेक्ट ऑफ मैंगो से सेम है तो मैंगो की कंजम्पशन सेम रहेगी, right? So this is how you divide according to substitution and income effect. Now let's analyze it on a diagram. ठीक है, अब हमारी जो ए बी है वो एक बजट लाइन है। ए बी नहीं बोलते इसको, एम एन बोल देते हैं। ये जो ब्लैक कलर की लाइन बोल रहे हैं ये ओरिजिनल बजट लाइन है। अब हमें पता है कि जब फिश का प्राइस कम होता है तो हमारी बजट लाइन कैसे शिफ्ट होती है, एम एन से एम एन डैश। तो हमारी जो बजट लाइन है ये एम एन से एम एन डैश की तरफ शिफ्ट हो जाएगी जब फिश का प्राइस कम होगा। अब ओरिजिनली जब प्राइस कम नहीं हुआ फिश का तो हम किस पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे हैं, हम ए पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे हैं। ए पॉइंट पे यानी हम इतना फिश कंज्यूम कर रहे हैं, हम इतना मैंगोज कंज्यूम कर रहे हैं जब फिश का प्राइस नहीं कम हुआ, राइट? दैट इज वन थिंग। अब फिश का प्राइस कम होने के बाद हम किस पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं ये हम सिर्फ एजम्पशन से सी पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं, अब देखो सी पॉइंट पे फिश की कंजम्पशन बढ़ी है। पहले वो फिश की इतनी कंजम्पशन कर रहा था, अब वो फिश की इतनी कंजम्पशन कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ए से सी पॉइंट, ठीक है, ओरिजिनल पॉइंट आफ्टर प्राइस चेंज, ए से सी पॉइंट पे फिश की कंजम्पशन बढ़ गई है। लेकिन ए से सी पॉइंट पे मैंगो की कंजम्पशन देखे तो पहले मैंगो की कंजम्पशन इतनी थी, अब मैंगो की कंजम्पशन कम है, तो मैंगो की कंजम्पशन हम देखते हैं कम हो गई है, राइट? तो ऐसा कब होता है कि मैंगो की कंजम्पशन कम हो जाती है, हमने अभी ये पढ़ा था। तो दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन ये वाला केस है, दिस केस हमने ड्रॉ किया है। In this case, what we have to do in the diagram is total effect जो A to C है, उस वो दो चीजें हैं। A to C is the total price effect। अब हमें इसको डिवाइड करना है कि कितना इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा, कितना इसमें इनकम इफेक्ट होगा। इसको डिवाइड करने के लिए what we will do is we will draw a diagram, right? In this diagram we have to draw. Now, when there is a change, when we have to measure the substitution effect, substitution effect की definition लिखते हैं हम। What is a substitution effect? Substitution effect, it is the change in x and y due to change in px by py or relative prices। और income effect, it is the change in consumption of x and y due to increase in real income। अब इसी को हम ग्राफ में प्लॉट करना सीखते हैं। फिश का प्राइस कम होने से बजट लाइन कैसी चेंज होगी, एम एन से एम एन डैश, राइट? इनिशियली हम ए पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे थे तो यानी तुम्हारा आईसी कैसा दिखता था, ऐसा, राइट? अब मुझे बताओ एम एन पे क्या स्लोप है बजट लाइन का, पी एक्स बाय पी वाई। एम एन डैश पे क्या स्लोप है, पी एक्स डैश बाय पी वाई। नाउ द स्लोप हैज चेंज्ड, बट अगर हम एम एन डैश की बात करें, फाइनल पॉइंट की बात करें, तो हमें पता है कि उसमें सिर्फ स्लोप ही डिफरेंट नहीं है, इसमें तुम्हारी रियल इनकम थी, सपोज कर लो आई। यहाँ पर जो तुम्हारी रियल इनकम है वो भी आई डैश है। रियल इनकम मतलब इनकम माइनस अपॉन प्राइसेस। सो रियल इनकम सिर्फ नॉमिनल इनकम नहीं है, नॉमिनल इनकम तुम्हारी सेम है, राइट? बट रियल इनकम डिफरेंट है। अब मैं इन दोनों को, मैं एक ऐसा पॉइंट चाहती हूं जहां पर प्राइजेस तो चेंज हुए हैं
बट तुम्हारी रियल इनकम सेम है। नाउ if there are two parallel budget lines, right? If I draw a parallel line from MN, ये parallel है MN से. Wait a minute, let me draw it parallelly. So draw parallel to MN. So if there is a parallel line to MN dash, so that means अगर और ये पैरेलल लाइन उससे इनवर्ड है तो दैट मीन्स इनकम किस में ज्यादा है, एम एन डैश पे या तो फिर ये पैरेलल लाइन पे, इनकम इस वाली लाइन पे ज्यादा है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर से कुछ इनकम वापस ले रहे हैं इस पॉइंट पे। लेकिन अगर ये जो पैरेलल लाइन है, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस का जो स्लोप है वो सेम होता है। तो ये जो एम एन डैश है इस पे स्लोप कितना है, ये है। तो यानी ये जो पैरेलल लाइन है इस पे भी ये स्लोप है। तो यानी ये पैरेलल लाइन वो लाइन सिग्निफाई करती है जब प्राइस तो फिश का कम हो गया है लेकिन अब कंज्यूमर की इनकम कम है, राइट। तो अब इसको ध्यान से समझते हैं। एमएन में, एमएन डैश में इनकम इफेक्ट भी है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माने ये रिलेटिव प्राइस फर्क है और इनकम इफेक्ट मायने रियल इनकम फर्क है। अब जब हमें पता है कि रियल इनकम क्या है, नॉमिनल इनकम अपॉन प्राइजेस, और हमें पता है ये जो प्राइजेस हैं ये कम हो गए हैं यानी रियल इनकम बढ़ गई है। अब हम चाहते हैं ये, इसका इफेक्ट हम निकालना चाहते हैं बाहर, इनकम इफेक्ट अगर इस लाइन से निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहां से जब हम यहाँ जाते हैं तो इसमें इनकम इफेक्ट भी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम नॉमिनल इनकम को कम कर दें तो जो रियल इनकम है वो सेम रह सकती है, राइट। तो हम जब ये जो पैरेलल लाइन एम एन डैश से डॉटेड लाइन में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, स्लोप सेम है, प्राइजेस नए वाले हैं, लेकिन तुम्हारी जो रियल इनकम है वो सेम है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, रेड लाइन और एम एन, इन दोनों में रिलेटिव प्राइजेस सेम है बट नॉमिनल इनकम डिफरेंट है। नॉमिनल इनकम डिफरेंट मतलब इस वाली लाइन और इस वाली लाइन से हमने एक तरह से इनकम इफेक्ट यहां से हटा दिया है। तो यानी ये जो पॉइंट तुम्हारा सी था, ये यहां से जब हम इस पॉइंट पे आए इसको डी मार्क कर लो, तो हमने एक तरह से इनकम इफेक्ट को कम कर दिया, राइट। इनकम इफेक्ट को निकाल दिया क्योंकि हमने उससे इनकम वापस ले ली। तो यानी जब ए से सी एक्स की क्वांटिटी बढ़ी थी तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था, एक इनकम। लेकिन जब हमने उससे इनकम वापस ले ली, वापस इसलिए ले ली क्योंकि हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि उसके कंजम्पशन में कितना चेंज है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। तो हम ये देखते हैं इस वाले डायग्राम में, अगर ए टू डी, यानी अगर हम ये मेजर करें ए टू डी पॉइंट में जाएं तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मेजर करता है, और अगर हम डी टू सी में जाएं ये इनकम इफेक्ट मेजर करता है, राइट। टोटल ए टू सी में जाएं तो ये प्राइस इफेक्ट मेजर करता है। अब इसको दोबारा से समझते हैं कि हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं। हम डिवाइड करने के लिए क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर से इनकम ले रहे हैं लेकिन ऐसे ले रहे हैं वापस कि प्राइजेस न्यू वाले ही हैं, प्राइजेस न्यू वाले पी एक्स डैश और पी वाई। तो यानी पैरेलल लाइन का मतलब ये स्लोप सेम है, राइट, वन चीज। लेकिन ये जो नीचे वाली पैरेलल लाइन है इसमें हम इनकम रिड्यूस कर रहे हैं। इनकम क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, ताकि एम एन और ये जो डॉटेड लाइन है एम एन डैश और डॉटेड लाइन, इन पे रियल इनकम सेम है।
राइट। हम इनकम वापस ले रहे हैं कंज्यूमर से, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम उनसे इनकम इफेक्ट निकालना चाह रहे हैं। तो हम पॉइंट डी पर आ जाते हैं। तो ए से डी तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब ये नोट करो कि पॉइंट ए और डी में फर्क क्या है। ए और डी जो है, पहली बात, ये सेम आईसी पे लाई कर रहा है। सेम आईसी पे मतलब यूटिलिटी इज सेम। सेकेंड पॉइंट, ए और डी में जो एमआरएस है वो डिफरेंट है, क्योंकि हमें पता है कि आईसी के हर पॉइंट पे जो स्लोप है वो फर्क होता है। अगर आप देखें तो डी पॉइंट जो है वो फ्लैटर है। तो यानी डी पे जो स्लोप है दैट इज लेस देन स्लोप एट पॉइंट ए। स्लोप क्या है? पी एक्स बाय पी वाई। और वो इसीलिए है क्योंकि डी पॉइंट का जो पी एक्स है वो कम हो गया। तो डी पॉइंट इज बेसिकली द पॉइंट जब तुम्हारा प्राइस फॉल हो चुका है। तो ए टू डी दोनों पॉइंट्स में क्या फर्क है कि डी पॉइंट पे प्राइजेस क्या है, स्लोप क्या है ये, और ए पॉइंट पे स्लोप क्या है, पी एक्स बाय पी वाई। तो यानी स्लोप किस पे ज्यादा है? इस पे। यानी स्लोप या तो फिर एम आर एस एट पॉइंट डी इज लेस देन एम आर एस एट पॉइंट ए। नाउ सिंस एम आर एस एंड स्लोप आर डिफरेंट, तो हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इट इज द चेंज इन एक्स एंड वाई ड्यू टू चेंज इन पी एक्स बाय पी वाई कीपिंग रियल इनकम कांस्टेंट। तो हमने जब यहाँ पर बात करी थी, जब हम एम एन डैश से ये डॉटेड लाइन में आ रहे हैं, हम उनका नॉमिनल इनकम कम कर रहे हैं। इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमारी रियल इनकम सेम रहे। तो यानी ये डॉटेड लाइन पे और एम एन पे जो हमारी रियल इनकम है वो सेम है। नॉमिनल इनकम फर्क है, राइट, बट हमारी रियल इनकम सेम है। क्योंकि हमारे हम जब हमारी जो प्राइस कम हुए थे और हमारी रियल इनकम बढ़ गई थी यहाँ पर, तो हमने वापस ले ली, उससे नॉमिनल इनकम कम कर ली सच दैट हमारी रियल इनकम सेम रहे। अब इसमें लिख देती हूं मैं, आई विल राइट वंस, रियल इनकम इज सेम ऑन एम एन एंड डॉटेड लाइन एंड नॉमिनल इनकम is same on mn dash and dotted line, right? So you can go through all of this. So the final division is that if A to C, in this case, A to C is total price effect. A to D is substitution effect. D to C is income effect. And once again, A to D में slope, MRS, PX by PY इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंट है, लेकिन रियल इनकम कांस्टेंट है। रियल इनकम कांस्टेंट मतलब रियल इनकम का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल इनकम अपॉन प्राइजेस। तो हमारे प्राइजेस क्योंकि कम हुए थे, हमारी रियल इनकम क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो हमने नॉमिनल इनकम कम कर दी जब हमने इनकम ली थी। तो ये रियल इनकम दोनों ए और डी पॉइंट्स पे कांस्टेंट है। और ए और डी पॉइंट्स कौन सी बजट लाइन में है? एम एन और पैरेलल लाइन। अब ये इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, डी और सी। डी और सी में तुम्हारा नॉमिनल इनकम जो है वो डिफरेंट है। तो यानी जब हम पैरेलल लाइन से एम एन डैश पे मूव करते हैं, एक तरह से हम उसकी इनकम बढ़ा रहे हैं, जिससे दोनों एक्स और वाई की क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन पी एक्स बाय पी वाई
दोनों डॉटेड लाइन पे और एम एन डैश पे सेम है, डी और सी पॉइंट पे और पैरेलल लाइन और एम एन डैश लाइन पे, राइट? सो दिस इज देयर। नाउ ये जो हमने इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करी, अभी हमने फिश के कंटेक्स्ट में बात करी, गुड एक्स के कंटेक्स्ट में बात करी। लेकिन अगर हम यही इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मैंगोज के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर आप ए से डी में मूव कर रहे हो तो मैंगो की कंजम्पशन, ये क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, मैंगो की कंजम्पशन हमें कम होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर डी से सी में बात कर रहे हो तो मैंगो की कंजम्पशन आपको बढ़ते हुए दिख रही है, विच इज ऑल्सो ट्रू। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से मैंगो की कंजम्पशन कम होगी, और इनकम इफेक्ट डी से सी जब आप मूव करोगे तो मैंगो की कंजम्पशन बढ़ेगी। तो अगर मैं फिश के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर रही हूँ तो हम एक्स एक्सिस पे लोकेट करेंगे, लेकिन अगर मैं मैंगोज के सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट की बात कर रही हूँ तो हम वो वाई एक्सिस पे लोकेट करेंगे। तो ये फर्स्ट केस था। अगर आप ए और सी को कंपेयर करो तो इसमें मैंगो की कंजम्पशन हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट सेम है, राइट? अब हमने तीन केसेस इसके पढ़े थे मैंगोज की कंजम्पशन के। एक तो सपोज डिवीजन हो गया, दिस इज योर इनिशियल बजट लाइन, दिस इज योर when price of fish falls, then m n dash, right? Suppose initially you are consuming at point A. Now after the price fall, if suppose you consume at point number C, now in this case we see that fish consumption from A to C, A to C is the total price effect, has risen, which is fine. But if we talk of mangoes, so mangoes consumption from A to C has also risen, right? Rise. अब according to the substitution effect, मैंगो की कंजम्पशन कम होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द इनकम इफेक्ट मैंगो की कंजम्पशन बढ़नी चाहिए। तो इस वाले केस में अगर मैंगो की कंजम्पशन फाइनल प्राइस इफेक्ट में बढ़ रही है तो यानी ये क्या केस है, when income effect of mangoes is greater than substitution effect of mangoes in this case. Second case, suppose this is your mn, this is this, right? Now suppose this is your initial consumption. अब मैंगो, सपोज दिस इज योर फाइनल कंजम्पशन। इसमें देखो फिश की कंजम्पशन बढ़ी है, मैंगो की कंजम्पशन कम हो गई है, तो यानी इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ मैंगो इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट ऑफ मैंगो। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट केस किया था वो उसमें हमने एग्जाम्पशन करी थी, जब ए और सी ऑलमोस्ट, ए यहाँ था तो सी यहाँ था, तो ऑलमोस्ट मैंगो की कंजम्पशन सेम थी, तो हम बाय एजम्पशन मान रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। लेकिन जरूरी नहीं है ये दोनों इक्वल होंगे। तो एज व्हाट वी कैन डू एज अ होमवर्क इज, इस केस के लिए सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट हमें डिवाइड करना है। सो हाउ विल वी डू दैट? सिमिलरली इससे इनकम थोड़ी ले लेंगे, राइट? सो एज अ होमवर्क यू कैन डू दैट, डिवाइडिंग द सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट ऑफ ऑल द दिस। इसका हमने डिविजन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट कर लिया है। यू हैव टू डू द डिविजन फॉर इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर दीज केसेस एज वेल, केस 1, केस 2 एंड दिस इज केस 3 विच इज डन, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस अभी तक हमने माना कि फिश एंड मैंगोज आर normal goods, but this might not happen. Next, we move to the case where one of the goods is an inferior good.
सो हाउ डू वी डिफाइन अ नॉर्मल गुड, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो उनकी क्वांटिटीज बढ़ेंगी। तो जब हम इनकम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर प्राइस कम हो रहा है एक गुड का, तो उन इनकम बढ़ रही है, तो दोनों गुड की क्वांटिटी बढ़ रही है। बट ऐसा नहीं होगा इंफीरियर गुड के केस में। सो दिस वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्लास. So this finishes the lecture of income and substitution effect meaning.